Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are global protests continue seeking racial equality and police reforms. UK offers a possible path to citizenship for Hong Kong citizens. Despite disagreements, US offers help in cleaning huge Russian oil spill. Financial updates and much more. Let's start with news in brief. There are now at least 7 million confirmed cases and more than 400,000 deaths worldwide due to coronavirus. The number of new daily cases worldwide has hit a new high, the World Health Organization reported, warning that the pandemic appeared to be worsening and urging countries that had seen improvement to remain vigilant. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days, the organization's Director General said at a briefing today. Yesterday, more than 136,000 cases were reported, the most in a single day so far. He said 3/4 of the new cases reported on Sunday came from just 10 countries, mostly in the Americas and South Asia. While the situation in Europe has improved, he issued an appeal to countries that had seen positive signs, warning them the biggest threat now is complacency. A 14-day quarantine period for all travelers arriving in Britain took effect today, to the anger of the country's travel industry and doubts over the practicality of the new rules. Under the system, those entering Britain by air, ferry or train will have to provide an address at which they will isolate for 14 days with a fine of up to £1,000 or $1,200 for violations. Canada reopened its border today to immediate family members of Canadian citizens and permanent residents. Anyone showing symptoms of the virus will remain barred from entry and everyone will be required to quarantine for 14 days. A border closing agreement between Canada and the United States is set to expire on June 21st. The Polish health minister reported 1,151 new cases over the weekend, a record for the country. Prime Minister Imran Khan of Pakistan expects the virus to peak in the country by the end of July or August, he said today, urging residents to take precautions. Pakistan has seen a sharp rise in cases over the last week, surpassing 100,000 confirmed infections and more than 2,000 deaths. There are signs that the healthcare system is buckling under increased pressure. For the first time in months, New York City is officially back in business today, with as many as 400,000 people returning to work in construction, manufacturing, and limited retail operations. The first coronavirus case was confirmed 100 days ago in the city that became a center of the pandemic, where more than 205,000 people were infected and 22,000 people died. On Sunday, there were an additional 35 deaths statewide and the city is still in a moderate transmission phase. New Zealand has declared itself coronavirus free as the country has no active cases of COVID-19 for the first time since February 28. It has now been 17 days since the country last recorded a new case of coronavirus. Fewer than 1,500 people were diagnosed with COVID-19 in New Zealand and 22 people died. Yosemite National Park will reopen to the public on Thursday, allowing 50% of its average visitors. The park is beginning a phased reopening that starts by allowing 1,700 vehicle passes each day. दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ग्लोबली ये मोमेंटम गेन कर लिया है इस मूवमेंट ने, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि रेशियल इक्वालिटी हो, पुलिस के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करे जाएं। तो छोटी बड़ी सारी सिटीज में काफी जगह पर इस तरह के देखे गए प्रोटेस्ट, जैसे लॉस एंजलिस में तकरीबन 20,000 लोग इकट्ठे हुए, लंदन में 10,000 का क्राउड था। वहां पर लोग ऐसे गुस्सा दिखा रहे हैं कि जो पुराने स्टैच्यूज होते हैं, कुछ स्लेवरी रिलेटेड जो लोग उससे रिलेटेड हैं, उन लोगों के स्टैच्यूज घेरे जा रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा जो है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब नहीं तो कब होंगे रिफॉर्म।
जॉर्ज फ्लॉयड का आज चल रहा है मेमोरियल ह्यूस्टन में, तो बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली वहां पर जा रहे हैं अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। और ह्यूस्टन में कल उनका प्राइवेट फ्यूनरल होगा और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड 2020 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन वो पहुंचे और जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली से प्राइवेटली उन्होंने ह्यूस्टन में मुलाकात की। और जॉर्ज फ्लॉयड के फैमिली अटर्नी बेंजामिन क्रम्प ने कहा कि he listened, he heard their pain and shared in their woe। और डेरिक चवान जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपना नी रखा था फ्लॉयड पी नेक पर, उनकी आज हियरिंग हुई और उनकी बेल सेट हो गई है एट $1.25 मिलियन। बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। ये काफी केस जो है स्विफ्टली चल रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल केसेस, तो हालांकि क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर है। और इन लोगों की अरेस्ट के बाद अब लोगों की डिमांड ये हो गई है कि कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में। वी कैन नॉट लेट दिस चांस पास अवे। और इस तरह की जब रेवोल्यूशन होती है तो लोगों की डिमांड होती है कि कुछ स्वीपिंग चेंजेस लाई जाने चाहिए। अब डेमोक्रेट्स ने आज किया लेड बाय हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी एंड सेनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर, उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है स्वीपिंग लेजिस्लेशन आज, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक्शन हो। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्रीट स्टेप फॉर एक्शन। और एक बड़ा भावुक सा उन्होंने एंटर किया कैपिटल हिल पर, तो सारे डेमोक्रेट्स जो हैं वो 8 मिनट्स और 46 सेकेंड्स के लिए दे नेल्ट डाउन। तो ये सिंबल ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी बन गया है। ये वही टाइम है जितनी देर के लिए जॉर्ज फ्लॉयड की नेक पर एक्स पुलिस ऑफिसर डेरिक चवान ने अपना घुटना रखा था एंड व्हेन ही डाइड। ये सारे डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने इस तरह का जेस्चर जो है दे वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू जॉर्ज फ्लॉयड। और उसके बाद जो बिल पेश किया है उसमें जो मेन उनकी डिमांड्स ये है, जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट कहा जा रहा है इसको। तो दे वांट बैन ऑन चोक होल्ड्स, they want development of national standard for the use of force, limit the transfer of military weapon, define lynching as a hate crime. They want to establish a national police misconduct registry to prevent problematic officers who are fired or leave an agency from moving to another jurisdiction without any accountability, and they want to limit the qualified immunity. अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है अमेरिका में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अगर कंपेयर करें हम बाकी नेशंस के साथ, तो पिछले साल यूएस में 1043 फेटल एनकाउंटर्स हुए थे पुलिस के साथ। यूके में इनकी तादाद है 3 और जापान में 0। तो एक साल में अमेरिका में 1000 से ज्यादा 1043 पीपल वर किल्ड बाय द पुलिस अमेरिका में। और बाकी कंट्रीज में जापान में कोई डेथ नहीं हुई, यूके में 3 डेथ हुई हैं। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर पुलिस अनआर्म्ड होती है, जैसे लार्जली अनआर्म्ड रहती है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूके। तो इन कंट्रीज में पुलिस अनआर्म्ड रहती है और हमारी कंट्री में यूएस में इट इज हेवीली आर्म्ड। तो जो मिलिटराइजेशन है पुलिस की और जिस तरह का एटीट्यूड है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। प्रोटेस्टर जो हैं वो मांग रहे हैं, कई जगह तो कह रहे हैं डिसबैंड कर दीजिए पूरा पुलिस फोर्स, और कई जगह कह रहे हैं डीफंड कर दें। अब प्रोटेस्टर डीफंड करना चाहते हैं। डीफंड का क्या मतलब है? डीफंड का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिए जाएं या उनके बजट जो है बिल्कुल ही स्टॉप कर दिए जाएं। कई एक्टिविस्ट हालांकि ये मांग रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के बजट जो है वो कहीं और डाल दिए जाएं, मगर डीफंड पुलिस मूवमेंट लार्जली लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ने $115 बिलियन जो है वो स्पेंड हुआ था 2017 में। ये अर्बन इंस्टीट्यूट का एक डेटा है। तो इतनी सारी एलोकेशन होती है पुलिस के लिए। उनका कहना ये है कि कुछ एलोकेशन इसमें से एसेंशियल सर्विसेज जैसे हाउसिंग है, एजुकेशन है, लोगों की होमलेसनेस की समस्या है, मेंटल हेल्थ की समस्या है, लोगों में और जॉब दी जानी चाहिए। तो उस तरह की जो सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, पुलिस की जो ड्यूटी है वो होनी चाहिए सेफ्टी, सपोर्ट एंड प्रिवेंशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस वालों को आप इस तरह से आर्म कर दें और फिर वो नहीं सुनवाई करें, और रादर देन प्रिवेंटिंग क्राइम्स दे आर इंडल्जिंग इन क्रिएटिंग क्राइम्स, और वायलेंस वो क्रिएट करते हैं। एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और धीरे धीरे जो है वो चेंजेस लाई जाएंगी। वो चाहते हैं कि कम्युनिटी में पीपल हु आर डीलिंग विद द क्राइसिस दे शुड बी बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद दोस क्राइसिस। और कई जगह पर प्रोटेस्टर्स जो हैं अमेरिका में वो सोच रहे हैं दैट अमेरिकन्स आर ओवर
पुलिस। वो सोच रहे हैं कि हम पुलिस में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि हमारी कंट्री जो है ज्यादा कंपैशनेट लविंग कंट्री होनी चाहिए और ये एक अपॉर्चुनिटी है री इन्विजन करने को पब्लिक सेफ्टी। अब बहुत सारी सिटीज में इस तरह की चीजों को पुश किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में मेयर बिल डी ब्लाजियो ने कहा है कि सिटी जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस की फंडिंग जो है वो यूथ इनिशिएटिव सोशल सर्विस की तरफ डाइवर्ट करेगी। सिटी को सेफ रखेंगे मगर वो काफी सारा जो बजट का हिस्सा है सोशल सर्विसेज में डालेंगे। लॉस एंजलिस के मेयर ने कहा है कि वो $150 मिलियन काटेंगे पुलिस फंडिंग से, पुलिस डिपार्टमेंट के बजट से वो डालेंगे और वेलफेयर वाली स्कीम्स में। मिनियापोलिस की पुलिस जो है जहां पर ये घटना हुई तो वहां पर मिनियापोलिस सिटी काउंसिल के मेजॉरिटी मेंबर्स ने ये कसम खाई है कि वो डिसबैंड कर देंगे सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट को। 12 काउंसिल मेंबर में से 9 ने ऐसा कहा है कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिसिंग जो है वो कम्युनिटी को सेफ नहीं रख रहा, तो हम एफर्ट करना चाहते हैं कि डिसमेंटल कर दें हम पुलिस डिपार्टमेंट को। अब किस तरह से होगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक फोर्स डिसबैंड होकर कोई और तरह की आप सेफ्टी मेजर ले लेते हैं, तो ये सारी जो मूवमेंट चल रही है। अब पुलिस ऑफिशियल और यूनियन जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके लिए। जनरली पुलिस ऑफिसर और यूनियन ऑफिशियल जो हैं वो बहुत देर से रेजिस्ट करते आए हैं कट्स की, पुलिस बजट में कट करेंगे तो सिटीज लेस सेफ हो जाएंगी। लॉस एंजलिस की पुलिस प्रोटेक्टिव लीग यूनियन उन्होंने ये कहा कि अगर बजट कट करेंगे तो दिस इज द क्विकेस्ट वे टू मेक आवर नेबरहुड्स मोर डेंजरस। उन्होंने कहा कि अगर आप बजट कट करेंगे तो इसका मतलब 911 की इमरजेंसी कॉल्स के लिए लंबी आपको वेट करनी पड़ेगी, ऑफिसर्स का बैकअप नहीं होगा और जो मर्डर असॉल्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको इनिशिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है वो ना भी हो सके। और उन्होंने कहा इस टाइम पे जब वायलेंट क्राइम बढ़ रहा है, ग्लोबल पेंडेमिक है, इतनी वायलेंस है, आर्सन लूटिंग है, अगर आप डिफंड करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को तो दैट विल बी द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल थिंग एनीवन कैन प्रपोज। और बहुत सारी सिटीज में ज्यादा सिग्निफिकेंट रोड ब्लॉक रहे हैं पुलिस यूनियन। बहुत साल से ये बात चलती आ रही है कि पुलिस में रिफॉर्म कर दिए जाने चाहिए, मगर पुलिस यूनियन एक बहुत स्ट्रांग एंटिटी है, उनके पास मेंबरशिप काफी है, उनके पास फंडिंग होती है, तो वो फंडिंग से कैंपेन पर स्पेंड कर सकते हैं, लिटिगेशन पर स्पेंड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है पुलिस वालों के लिए कि उनकी यूनियन उनको डिफेंड करेगी। ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं मगर फिर भी वो पुलिस फोर्स में काम करते रहते हैं, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब देखिए यूनिटी की बात, अब लास्ट वीक जब बफलो में 2 पुलिस ऑफिसर्स ने एक 75 साल के इंसान को धक्का देकर गिरा, वो पूरा वीडियो में दिखाया गया है, तो 57 पुलिस ऑफिसर्स उस यूनिट के, उन्होंने कह दिया हम भी इस यूनिट को छोड़ते हैं। तो किस तरह की उनमें एकता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ रहते हैं। तो यूनियन भी इसी तरह से उनको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनका पॉलिटिकल क्लाउट है, वो पॉलिटिकल पावर यूज करते हैं सिटी में। उनके पास चूंकि अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे ठीक तरह से तो कई बार सिटी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको झुकना पड़ता है इस ताकत के आगे। और ज्यादातर डिमांड्स ये हो रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। एक्सेस जो फोर्स है वो यूज कर रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। उनकी पॉलिसीज जो हैं, और वो कई बार क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की तलाशी ले रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, उनको पता होना चाहिए किस तरह की रेशियल सेंसिटिविटी उनको होनी चाहिए, बायस है, किसी की मेंटल इलनेस है, एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीजों की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि डिमांड यही हो रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट का ओवरऑल होना चाहिए। अब ऐसे में सारी बात जो है वो पहुंच जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रवैया है, क्योंकि आपको अगर ऊपर से चेंजेस लानी है तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आज काफी खफा हैं क्योंकि उनकी रेटिंग जो है वो ड्रॉप हो गई है। उनकी ओवरऑल जॉब अप्रूवल रेटिंग 7% ड्रॉप हो गई है पिछले महीने से, CNN की एक पोल के मुताबिक। और प्रेजेंटिव डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन की जंप हो गई है, 14 पॉइंट लीड है उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। नवंबर में जनरल इलेक्शंस है और एक सर्वे में पाया गया है कि 55% वोटर्स कहते हैं कि वो जो बाइडेन के लिए वोट करेंगे अगर आज इलेक्शन होगी, और 41% फेवर करते हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट करेंगे, क्योंकि जो पेंडेमिक की उनकी हैंडलिंग है और जो आजकल प्रोटेस्ट हैं उसकी हैंडलिंग है, उसकी वजह से उनकी रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है। और उन्होंने ये कहा है कि वो डिसबैंड डिफंड नहीं करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को। उन्होंने क्लियरली कहा, आज उन्होंने एक
पुलिस यूनियन और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल के साथ मीटिंग की व्हाइट हाउस में, और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कॉल टू डिसबैंड डिफंड पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा पुलिस वाले ज्यादातर अच्छे होते हैं और वो इनक्रेडिबल जॉब कर रहे हैं। हालांकि जनरलाइज करना सही नहीं है, आप सारे पुलिस फोर्स को नहीं ब्लेम कर सकते कि सारे ही पुलिस वाले ऐसे हैं, देयर आर सम बैड एप्पल्स, मगर ये बिल्कुल उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। रिफॉर्म्स जो है उसके लिए ग्लोबली प्रेशर हो रहा है और हर लेवल पर, लोकल लेवल पर जो जो लेजिस्लेचर हैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हांगकांग के नागरिकों की मदद के लिए वो तैयार हैं और उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब हांगकांग में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसका असर जो है वो यूके पर पड़ता है, क्योंकि यूके ने जब हैंड ओवर किया हांगकांग को चाइना को 1997 में, तो ये एक कंडीशन रखी गई थी कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा, उसकी ऑटोनॉमी इंटैक्ट रहेगी। मगर चाइना जो है वो कंटिन्यूसली इंटरफेयर कर रहा है हांगकांग के इंटरनल अफेयर्स में बहुत साल से, और कंट्रोल करना चाहता है और लोगों के राइट्स को क्रश करना चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि वो तैयार हैं हांगकांग के सिटीजन्स की मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को वहां डर लगा हुआ है, उनको लगता है कि खतरा है उनको चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से। वो अपनी जो उनका वादा था कि ऑटोनॉमी रहेगी हांगकांग में 2047 तक, उस वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहे। और अगर चाइना की वजह से हांगकांग के सिटीजन्स को डर लगा हुआ है तो ब्रिटेन चुप नहीं बैठेगा। तो उन्होंने इस तरह की ऑफर की है कि 3 मिलियन हांगकांग के रेजिडेंट्स हैं, उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उनके रास्ते जो हैं वो आसान कर दिए जाएंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह से लॉ मेकर जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि हांगकांग के लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा होनी चाहिए और उनको जिस तरह की सिचुएशन में चाइना वाले डालना चाहते हैं उस सिचुएशन से निकाला जाना चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि पहले ये हांगकांग यूके के पास था, तो इसीलिए उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कि यूके के सिटीजन्स की किसी तरह से मदद करें। अब ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है वो 40% ऑफ हांगकांग पॉपुलेशन को मिल जाएगी और इससे हो सकता है कि फाइनेंशियल सेंटर जो है हांगकांग वहां से ब्रेन ड्रेन हो। अब हांगकांग जो है उसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने, मगर अब अगर चाइना कंट्रोल कर लेगा तो वो सारी जो स्पेशल स्टेटस वाली उनको कंसेशंस मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। जिस तरह के टैरिफ्स और जिस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ है उसी तरह का होगा। वहां से काफी कंपनी हो सकता है मूव आउट हो जाएं और लोगों पर असर पड़े, और इसीलिए हांगकांग के लोगों को ये ऑप्शन दी जाएगी कि वो ब्रिटेन जा सकें। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास पासपोर्ट है 1997 से पहले, जो लोग जिन लोगों का बर्थ हुआ हांगकांग में उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं। तो अभी उनके पास इस तरह की सुविधा है कि 6 महीने के लिए वो ब्रिटेन में रह सकते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि जो होल्डर्स हैं ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट के, उनको 12 महीने तक रहने की इजाजत दी जाएगी, उनको काम करने का राइट मिलेगा और धीरे धीरे उनको जो राउट टू सिटीजनशिप है वो उनके लिए आसान कर दिया जाएगा। तो अबाउट 350,000 people in Hong Kong hold the documents, but additional 2.5 million people are eligible. अब उन्होंने ये कहा कि इस तरह की अगर वो सुविधाएं देंगे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी इस तरह की। अब लॉ मेकर जो है यूएस में भी सेनेट मेजॉरिटी लीडर मिच मैकॉनेल ने कहा है कि यूएस का रिस्पॉन्स भी मिरर करना चाहिए उन डेमोक्रेसीज का जिन्होंने ओपन कर दिए हैं दरवाजे हांगकांग के लिए। तो यूएस ने भी कहा है कि वो भी हांगकांग वालों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि चाइना के शिकंजे से उनको निकालकर किसी तरह की सुविधाएं दी जाएं। मगर ये नहीं है कि सारे लोग हांगकांग में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, कई लोगों का मानना ये है कि यूके में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है,
ये जरूरी नहीं है कि BNO होल्डर्स अगर वहां चले जाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, मगर उन्होंने कहा कि अगर प्रेशर ही पड़ जाए इस बात पे चाइनीज गवर्नमेंट पर, ये भी बहुत अच्छी मूव होगी, चाहे वो लोग जाएं या ना जाएं, मगर अगर वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा दबाव डालें चाइना पर कि उन लोगों को वहां से बुला लिया जाएगा, वहां से उनका जो है फाइनेंशियल ड्रेनेज हो जाएगी, जो फाइनेंशियल बिग विग्स विल मूव, तो इस तरह का प्रेशर भी अगर चाइनीज गवर्नमेंट पर डाला जाए तो वो भी एक अच्छी मूव है। रशिया में एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट ऑयल स्पिल इन रशियन हिस्ट्री। तो वो स्पिल जो है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी एवर टू हिट दैट रीजन। इतना ज्यादा ऑयल स्पिल हुआ है कि स्पेस से देखा जा सकता है ब्राइट रेड पैचेस, 135 स्क्वायर माइल में वो फैल गया है ऑयल स्पिल। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया है रशिया की मदद करने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑयल स्पिल है और वहां पर आर्टिक रीजन नॉर्दर्न सर्बिया में है, उसमें फैल गया है सारा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा है, सैडन टू हियर अबाउट द फ्यूल स्पिल इन Norilsk, that is the river in Russia. तो उन्होंने कहा, despite our disagreements, United States stands ready to assist Russia to mitigate this environmental disaster and offer our technical expertise to clean that. तो इतना सारा जो वहां पर डीजल लीक हुआ है, 21,000 टन डीजल जो है वो लीक हो गया है अंबरनाया रिवर में, और ये रशिया में एक सिटी है नोरिल्स्क, वहां पर ये लीकेज हुई है। एक टैंक जो था जिसमें 21,000 टन डीजल था वो कोलैप्स कर गया, तो 6,000 टन जो है वो ग्राउंड पर गिरा, 15,000 टन पानी में गया, और इतनी ज्यादा सीवियर सिचुएशन है कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और ये इस आर्टिक रीजन में दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सीडेंट। तो रशिया में जो डीजल है उसको लाल रंग का डाई कर दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर में। लाल डीजल जो है वो स्पेशल स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है और उसको कंज्यूम किया जाता है एज एनर्जी सोर्स। अब ये जो लाल डीजल है ये 135 स्क्वायर माइल तक फैल गया है और स्पेस से भी इसके पैचेस जो हैं ये विजिबल हैं। अब इस प्लांट में जब प्रॉब्लम हुई, स्पिल होना शुरू हो गया रिवर में, तो जहां वहां के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया। गवर्नमेंट को पता चला सोशल मीडिया से, और इसीलिए बहुत नाराजगी हुई कि सोशल मीडिया से गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि लीकेज हुई है, क्योंकि छुपाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब पता चला तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। लीकेज बहुत बड़ी है, उससे आसपास के एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। 85 मिलियन का नुकसान हो सकता है कि 10 साल लग जाएं लोकल इकोसिस्टम को रिकवर होने को, क्योंकि इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वहां मछलियां हैं वो मर रही हैं, बर्ड्स जो हैं उनके जो प्लूमेज है वो पोल्यूट हो रहे हैं, एनिमल्स पॉइजन हो रहे हैं, तो आसपास का पानी जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो गया और इकोलॉजी के लिए ये बहुत बुरी बात है। और अमेरिका ने मदद उनको ऑफर रखी है रशिया को कि वो कर सकते हैं। Time for our financial update. S&P 500 erases its loss for the year as stocks rally on reopening optimism. The S&P 500 wiped out all its 2020 losses today as traders grew more optimistic about the prospects of an economic recovery while states continue to reopen. Stocks finished the day on sessions high with S&P 500 jumped 38 points to 3,232, turning positive for the year after bouncing about 47% off its March low. The Dow Jones Industrial Average traded 461 points higher to 27,572. The Nasdaq Composite was up 28 points at 9,924 and hit a fresh record high. The price of gold per ounce $1,706. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 38 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.